मेरा फोन ही नहीं है। This one is a CNC milling machine. Two types of milling machine, horizontal and vertical. At present, this is the CNC vertical milling machine. CNC means, do you know what is the CNC? कंप्यूटर नेटवर्क कंट्रोल। What is its definition? Milling machine is a power-driven machine tool in which cut the material through rotating cut. इसमें जो कटिंग टूल है ना वो रोटेट करके मेटल को रिमूव करते हैं। मल्टीटूल वन एंड मोर एजेस हैज द अदर, इससे एक से ज्यादा कटिंग एज वर्क करते हैं। ऑन द लेग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एट दिस मशीन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन फ्रॉम एयर टू एयर, दिस इज द टेबल। ATC means automatic tool changer. Maximum we can use the 6 number of tools in the one program. This is the vertical head cutting tool. The proper name of the cutting tool, end mill cutter. The operation's name is also end mill operation. Types of cutter: end mill, shell mill, face mill, key slot, angular or fly cutter. 5 to 6 type of cutting tool. At this machine you can use right angle clamp, straight clamp, movable jaw. These are workpiece. Workpiece material aluminium. Cutting tool material tungsten carbide tool. On the left 2 axes, X and Z. At this machine 3 axes, X, Y and Z. But you can see direction by the chart. X linear motion according to the table. Y cross right, Z up and down by the cutting tool. This is the Allen key box. Generally we have used the 4 number key. Already mentioned on the box 4 number. It consists the chrome reading steel. Its help, you can loose and tight the screw. Anti-clockwise it will loose, or clockwise you can tight. Similarly other side you can do anti-clockwise for the open the job. Okay, इस तरह से वर्क पीस निकलेगा। ये नया देंगे इंसर्ट करने का इसमें, एंड टाइट बाय क्लॉकवाइज। द वर्क पीस शुड बी थॉरोली टाइटेड, शुड नॉट बी लूज। आफ्टर टाइट द वर्क पीस शट द डोर। EOB full form, endo block, GOG jump over metric, MPG manual personate, MDI manual data input for the general use. Machine has run the 3 modes: auto, jog and edit. 3 मोड में वर्क करता है, ऑटो, जॉब एंड एडिट। बाय ऑटो you can run the automatically according to the program. This is the program. Today we will follow in the Smiley's program. In the first 6 line is the common in each program. जो पहले 6 लाइन है ना हर प्रोग्राम में यूज। इसमें 2 कोड है रिलेटेड ऑफ द ऑफसेट G54 और G43, वो एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट बाय जॉब। Jog means jump over metric. By jog you can engage the manual as per XYZ plus minus for the direction of the table. इसमें आप मैनुअल चला सकते हैं। By edit you can to type the program by keypad A to Z 0 to 9 through pen drive you can do also. Through pen drive भी प्रोग्राम फिट कर सकते हैं आप, या टाइप भी कर सकते हैं। G54. What is the G54? X0 Y0 given in the program. In the one time you can mount the 6 job on the platform for the production. Let us suppose the first job we will make a radius, second job triangle, hexagon. यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 6 जॉब लगा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। पहले जॉब में मैंने रेडियस बना दिया, सर्कल बना दिया, उनमें X0 करना है, Y0 यू कैन सी बाय कोऑर्डिनेट। दिस इज द वर्क कोऑर्डिनेट फॉर द फर्स्ट जॉब G54। अगर मैंने एक जॉब लगाया ना तो उसको G54 लिखेंगे प्रोग्राम में। अगर मैं सेकंड जॉब यहाँ पे माउंट करूंगा तो G55, थर्ड में G56, नीचे प्रोग्राम फॉलो करेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। नेक्स्ट है मेरे पास G43 कंपनसेशन ऑफ टूल, H1 हाइट ऑफ कटिंग टूल, Z10 डिस्टेंस को दें कितने हाइट पे। G43 ओपन द सिस्टम, गो टू कोऑर्डिनेट एंड EXP। दिस इज द G43। वन साइड लेंथ ऑफ सेट, अदर साइड रेडियस ऑफ सेट, यानी कि एक ही टूल के 2 ऑफसेट हैं। लेंथ ऑफ सेट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कटिंग टूल, आर ऑफ सेट डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द कटिंग टूल। ठीक है, इट विल टेक द रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर 1 2। जैसे हम M06 T01 लिख दें ना, ये आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा इस तरह। टच करना है जॉब के ऊपर, जब टच करेंगे दिस इज द मशीन रीडिंग
एक्स वाई एंड जेड। जो जेड में रीडिंग आएगा अकॉर्डिंग टू द कटिंग टूल नंबर 1, इसको नंबर 1 शो किया, तो इसमें नंबर 1 में कॉपी करना है कैसे, एडिट, गो टू द जेड और ईओ। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द नंबर 1 टूल। सिमिलरली फॉर द सेकंड टूल, टेक ए रेफरेंस। जब आप रेफरेंस में इसमें दोनों में हमने लेंथ का डिफरेंस रखा ना, इस लेंथ से जो अकॉर्डिंग लगाएंगे आप, तो फिर रीडिंग चेंज होगा। ये रीडिंग सेकंड में कर दीजिए, M06 E02 लिखा है हमने, एडिट जेड एंड ईओ, ठीक है बेटा, ये दोनों का हो गया रेफरेंस। अदर साइड है रेडियस ऑफसेट। रेडियस ऑफसेट, व्हाट इज द रेडियस ऑफसेट? आप कोई भी इसमें ड्राइंग बनाते हैं ना, पेन या पेंसिल यूज करते हैं, उसका टिप कितना होता है, 0.1 होगा या 2 होगा, 0.2, लाइन ड्रा कर दें। एट प्रेजेंट टूल यूज कर रहे हैं हम 6 mm, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 25 भी। जब वो रिमूव करेगा मेटल, कितना करेगा एज पर डायमीटर, यू कैन सी ऑन द जॉब। 6 mm में 6 mm का ग्रुप बना लिया, 0.1 तो नहीं किया उसने। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आफ्टर 0 मूव द जॉब 3 mm बिकॉज द टूल डायमीटर 6 mm, ठीक है। तो वो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ जो मैंने लाइनें ड्रा की है ना, वो सेंटर में आ जाएगा, आधा इधर काटेगा आधा इधर, दैट इज द रेडियस ऑफ सेट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, हाउ टू ऑपरेट द मशीन फॉर द प्रैक्टिकल। ऑफसेट x0 करना है, y0 करना है, z0 करना है, भाई यही मेन चीज। x हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया है, y 4 में है, x और y सेम है, सिर्फ x के स्थान पे y के स्थान पे x लगाना, ठीक है। z थोड़ा डिफरेंट है, z में 2 स्टेप है ना। दिस इज द कंट्रोल बॉक्स, नॉब है इसको क्लॉकवाइज करने का, रेड में लाइट है, ग्रीन को प्रेस करने का, स्क्रीन में ये रेडी का। उसके बाद देन आफ्टर गो टू द जॉब, सबसे पहले याद रखना ये जॉब का बटन दबाना, मैनुअल हो गया। वेयर इज एक्स प्लस, एज पर चार्ट अकॉर्डिंग टू द जॉब, इधर आएगा। जो उसका टूल का कटिंग एज है, वो जॉब की थिकनेस के सेंटर तक डाउन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड प्लस माइनस। यूज द जेड माइनस, ब्रिंग डाउन द कटिंग टूल। For the cross side y, then again bring down. I think the cutting tool adjust as per rotor. Run the spindle from here and take a reference by the x plus. Machine is on the 1000 feet. But fast time you cannot control the 1000. Now you do so decrease the feet by the vertical arrow. Downward, decrease over, upper arrow, increase. You can increase upper arrow. Run. From 1000 to 100, so that we can easily control the 100 mm. After 100, take a reference by the x plus, a little touch on the job by the cutting tool. It's okay. After taking the reference, stop the machine and rise up the cutting tool by the Z plus, 5 to 8 mm from the surface of job, because we have moved the job 3 mm according to the tool diameter. Okay, this is the first step. In the second step, make a 0. एक्स का रीडिंग 0 करना है, कैसे करना है, 4 बटन है। पहले जिस पोजीशन पे टूल स्टैंड कर रहा है, पोजीशन का बटन है F1, फिर आएगा रिलेटिव F2। कौन सा एक्सिस करना है, आफ्टर रिलेटिव एक्स एक्सिस, देन सी एन थ्रू कैंसिल, ठीक है। सेकंड स्टेप में F1, F2, एक्स कैंसिल, ये हमारा सेकंड स्टेप। इन द थर्ड स्टेप मूव द जॉब 3 mm। कैसे करना है, go to the MPG step 2 time, 1 time and 2 time. Okay, वैल्यू आ गया 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1 mm। ये कर्सर 100 पे स्टैंड कर रहा है, 100 माइक्रोन पे, ठीक है। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000। तो हमने 3000 माइक्रोन करना है। अभी ये 100 पे है, मुझे 30 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। नाउ यू डू सो, चेंज द कर्सर बाय दिस एरो, स्टैंड ऑन द 1 mm। 1 mm means 1000 micron. Now use the x plus 3 times for the 3, 1, 2 or 3. Okay, 3 add हो गया। In the fourth step open the G54 by coordinate, जिसमें मैंने बोला था आपको इसको x0 करना, y0 करना, z नहीं करना। x0 means जो मशीन में x का रीडिंग आया वो इसको कॉपी कर दीजिए इसमें x में, सेव कर दीजिए। कैसे, 3 बटन है, फर्स्ट एडिट, सेकंड जो एक्सिस आपने करना है, थर्ड है ईओ। 4 स्टेप में एडिट, एक्स एंड ईओ। सेकंड स्टेप में 0 करने में F1, F2, एक्स
एंड कैंसिल। कैंसिल। इसी तरह बाई में आए। ओके, एग्जिट मॉनिटर, देन अगेन जॉब, इंक्रीज द फीड रेट बाय द अपर एरो 1000 बाई प्लस, फ्रंट पे आएगा, इधर है। मूव द कटिंग टूल बाय द एक्स प्लस, ब्रिंग इन द सेंटर ऑफ द जॉब अप्रोक्सीमेटली, बट वी डिड नॉट मेजर द सेंटर फॉर जॉब, एंड टेक आउट द कटिंग टूल फ्रॉम द बाई एक्सिस। अब इसको बाहर निकाल लेंगे बाई एक्सिस से, नीचे करेंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ, व्हेन यू विल टेक द रेफरेंस शुड बी 100, आफ्टर 100 रन द स्पिंडल एंड टेक ए रेफरेंस बाय द वाई प्लस। हल्का सा इंप्रेशन लेना आपको, ठीक है। रोक दिया, इसको ऊपर उठा लीजिए जेड प्लस से। इट्स ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द बाई ऑफसेटिंग? F1, F2, Y, and then cancel. चलो 3 ऐड करना। व्हाट इज द मेथड फॉर द 3? MPG बिल्कुल सही MPG बोला। को स्टेप में जाके ऑलरेडी 1 पे या नो नीड नो चेंज, कौन सा बटन यूज करने का? Y प्लस वाला। नहीं, हाँ बाई प्लस, Y plus। ओके 8 नंबर है बाई प्लस, यहाँ 6 नंबर है एक्स प्लस। इसको 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है। देन आफ्टर कोऑर्डिनेट। अब 3 बटन, एडिट, चूज द एक्सिस, EOB। वही इतना काम है, एक्स और वाई सेम। अब जेड पे चलते हैं, ठीक है। एग्जिट मॉनिटर, देन अगेन जॉब, मूव द बाई प्लस 3 और 4 mm बाय 8 नंबर, ओके। आप एक्स प्लस कहीं भी टच कर सकते हैं, वाई प्लस कहीं भी टच कर सकते हैं, जेड कहीं भी टच कर सकते हैं। एक बार रेफरेंस ले लिया तो मूव नहीं करना, यानी कि मैं एक्स में वाई और जेड मूव कर सकता हूँ, वाई में एक्स और जेड मूव कर सकते हैं, जेड में एक्स वाई मूव कर सकते हैं। वो एक्सिस वहीं पे रहेगा। रन किया, अब इसको यहीं से टच कर देंगे जेड माइनस से, हल्का सा रोक दिया, ठीक है बेटा। अब जो रीडिंग आया ये -120, ये डायरेक्ट नंबर 1 टूल में कॉपी करना है, 0 नहीं करना, 3 नहीं करना, क्योंकि ये शो कर रहा है जब होम में जाएगा ना तो नीचे आने के लिए नंबर 1 टूल पे कितनी रीडिंग नीचे लेकर आना, ये शो कर रहा है 120 फॉर द रेफरेंस ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। सरफेस पे जब टूल टच करेगा ना उसका रेफरेंस है ये। उसके बाद अप्लाई कितना किया डेप्थ ऑफ कट प्रोग्राम में, 1 mm या ½ mm, उतना और नीचे जाएगा, इनग्रेव करेगा। ओपन द सिस्टम नाउ, टेक द रेफरेंस बाय द जेड, गो टू कोऑर्डिनेट एंड EXP F2 थ्रू, ठीक है बेटा। ये आ गया लेंथ ऑफ सेट, रेडियस ऑफ सेट। जेड में रीडिंग है और नंबर 1 टूल में कॉपी कर दो, वो 3 बटन आपको मालूम, एडिट, गो टू द जेड एंड EOB। इधर अगर ऑलरेडी 3 है, नो नीड नो चेंज। अगर 5, 6, 8 या 10 है, चेंज कीजिए इसको इधर बाय कर्सर, 3.0 टाइप कीजिए और EOB कर दीजिए, ठीक है। तो ये सभी हो गए हमारे एक्सिस, ठीक है। आफ्टर टू टेक द रेफरेंस बाय एक्सिस, एग्जिट मॉनिटर, बिफोर टू रन द प्रोग्राम गो टू होम एंड स्टार्ट। प्रोग्राम चलाने से पहले ना होम और स्टार्ट में चले जाए। उसके बाद 4 बटन है, 4 बटन यूज करना है, जिसको हम मास बोलते हैं। ओके, इसमें कुछ रीडिंग होगी एक्स और वाई, 0 नहीं होगा। 0 कहाँ शो होगा? कोऑर्डिनेट में जाइए, मशीन रीडिंग, ये क्या शो कर रहा है? 27 प्लस है या माइनस है, जो भी है 120। एक्स में 120 मूव करेगा, उसमें 120 करेगा, नीचे नंबर 1 टूल के अकॉर्डिंग जितना भी है रीडिंग वो वहाँ से करेगा, एक कॉर्नर में जाएगा। हो सकता है आपको क्लास में कॉर्नर से बताया हो ऑफसेटिंग, कि यहाँ पे स्टैंड कर दो टूल को, एक्स इधर कर दो, वाई उधर कर दो, यहाँ लगाने मैंने एक एक करके बताया, सिंगल, ठीक है बेटा। एग्जिट मॉनिटर, ऑटो, रीसेट एंड स्टार्ट। अब ये चलेगा प्रोग्राम फॉलो, ठीक है। बाय ग्राफ यू कैन चेक, गो टू द पाथ F2 थ्रू, ये शो करेगा टूल कहाँ जा रहा है,
क्या बनाएगा? हेलो लिसन, व्हाट आर डूइंग हियर? If you have tugging, you can go. अब क्या है उस लाइन में, जो लाइन आई है हमारे पास ये देखिए X50, Y वहाँ से 50, तो फिर आगे नेक्स्ट लाइन को फॉलो कर रहा है ये देखिए, यू कैन चेक G01 Z पॉइंट माइनस .5 F30 या 20 जो नेक्स्ट डायमेंशन आ गया, अब सर्कल में जाएगा। G03 एंटी क्लॉकवाइज, G02 clockwise. G02 क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चले आए, इधर को ना क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज G02 लगा हुआ है यहाँ पे, G02 है, इट्स ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू विल डू इट। आपको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अगर फिर भी नहीं मालूम यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम।